ہے बाबा जी उन्हें तस्वीर आदे आप बड़ा बॉबी देवर समझदा है जी जिन्ने भी पैसे लगणगे मैं लाना मैं ये मर जावे बस उनदा ना इकरार हुसैन सही। पाकिस्तान में यूं तो अमलियात, काले इल्म, देसी तरीक़ा इलाज और नित नए तरीकों से बीमार लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें बेपनाह लूटा जाता है, लेकिन हमें कुछ अरसे से एक अजीबो गरीब शिकायत मौसूल हो रही थी और वो ये कि रावलपिंडी और बहावल नगर में दो लोगों के सर की नसों, गर्दन की रगों और जिस्म के बाकी हिस्सों से खून की नालियों में जानवरों वाली सिरिंजों से खून निकाल कर मरीजों को बताते हैं कि उन्होंने इनकी रगों में जमा हुआ खून निकाल दिया है और अब वो सेहतमंद हो जाएंगे। बताया इसने बहुत गलत कराया। अच्छा पहले बर्डन था ये मूंछ, फिर चेस्ट, गले में घुटन, सांस में घुटन, फिर ये दर्द हुआ, फिर साइड सुन्न हो गई पूरी। हाँ ये जो चेहरा है ना बस सुन्न हो गया। हमारे नहीं अल्लाह ने भेजा था, आपको भी अल्लाह ने भेजा है। वो कहने लगे कि यहाँ नहीं कुछ भी वो अभी मैं नहीं ये नहीं बताना किसी को कि क्या करते हैं। इधर क्लाट है, ये रग बंद है आपकी, इधर से आ रही और रग खोलनी हमने। ये अभी सिरिंज पे लेके नहीं आई, ये फालज है। तो डॉक्टर साहब ये शुरुआत है इनकी? हाँ सर शुगर इनकी ठीक थी। शुगर नॉर्मल थी? नहीं पहले थी नहीं शुगर की नाम है प्रेशर उसको बड़ा फायदा होगा। फिर मैं कह रहा हूँ नहीं कहूँगा क्या नहीं बस हाँ ये हमें हमारा एक टीकाकार है ना वो, ये पूरे पाकिस्तान में बाहर एक बंदा बता या चीन में हो रहा है या पाकिस्तान में कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या नाम है। अच्छा ये सीरप है ना जौन सा ये तभी इस्तेमाल करना कब्ज होगी, अगर नहीं होगी तो कोई जरूरत नहीं। ये 4 टैबलेट है, बेशक आती है लिखा होगा, इसमें नमक, घी और अंडा 3 चीजें अवॉइड करनी है, परहेज करना होगा। तो अभी मुझे बता के जाओ उसका प्लाट वॉश करा के लेके आओ, 8-10 दिन तक ये खानी 20 तारीख का ठीक हो गया। आराम से लगा नहीं इधर सर्कल काम नहीं से कमरे में वाले कमरे जाओगे, मोटर पट्टी दिखाओगे, दिमाग से खून जाएगा। भाई आराम से इसका क्या करना है भाई सीरीज का? सर इसमें ट्रैवल करना है तो इंजेक्शन लगाना कुछ नहीं होता इंजेक्शन में क्या है उड़ जाओ, उड़ जाए।
یہ کیا ڈاکٹر صاحب کو دکھانی ہے؟ اپنی سلائڈ سٹارٹ ہو گئی پانی لگاؤ اپنی سلائڈ میں. آپ کے پاس دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ کبھی بھی نہیں یہ ٹھیک ہوگی. یہ کیا ہے سر؟ یہ الیکٹرک مشین ہے یہ. کرنٹ لگتا ہے؟ ہاں جی. کتنا کیا رہی ہے؟ کتنا لگے گا؟ کتنا لگے گا؟ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ نہیں سچی بات. اس کے لیے تم دونوں کو نا 7 دم یہاں کرنے ہی اکٹھے. ٹھیک ہے. ہر جمعرات کو یہاں فصل لگے. یہ دیکھ رہے ہیں یہ کاٹا ہے یہ کاٹا ہے یہ دل پہ بھاری پڑنا ہے ٹینشن کی وجہ سے. کوئی اور بھی مسئلہ ہے؟ عمل کا اثر ہے. مسئلہ تو ہے نا یار یہ چل رہا ہے کراس ہے نا سارا. کراس بہت خطرناک چیز ہے. یہ دیکھو نا یہ کراس اپنا ہے یا غیر ہے؟ بھائی یہ استخارہ لیں گے 7 دموں کے بعد. اس کو ہارٹ چیک کر ذرا مجھے بہت سلو لگ رہا ہے. اندر جاؤ ذرا. دماغ کا تیل دینا سرما کے گلاب دینا نظر بھی دے رہے ہیں. جب پڑھتے ہو تو چکر آتے ہیں کوئی چیز پڑھتی ہے. ٹیم سریام نے بہاول نگر اور راول پنڈی کے ان دونوں صاحبان کے طریقہ علاج کی خفیہ ریکارڈنگز کی جہاں یہ لوگوں کے سر کی نسوں سے انتہائی بےہمانہ طریقے سے خون نکال رہے تھے. حالانکہ ان دونوں کے پاس نہ ڈاکٹری کی کوئی ڈگری تھی، نہ نرسنگ کا کوئی سرٹیفکیٹ تھا اور نہ ہی اس نام نہاد طریقہ علاج کا کسی بھی طرح کا کوئی اجازت نامہ. سو ہم نے ان میں سے کسی ایک کے پاس جانے کا سوچا تاکہ معلوم تو کیا جا سکے کہ یہ کیا طریقہ علاج ہے، ان کے پاس کون سی ڈگری ہے اور ان کے پاس ہر وقت لوگوں کی ایک بڑی تعداد آخر کیوں جمع رہتی ہے. سو ہم راول پنڈی والے صاحب کے پاس پہنچے. یہ حکمت بھی کرتے تھے، ڈینٹل کورس بھی کر رکھا تھا، 7 ہفتے دم درود کے لیے بھی بلایا کرتے تھے اور سرنجوں سے لوگوں کا خون بھی نکالتے تھے. ہم صرف یہ جاننے گئے تھے کہ یہ صاحب اور ان کے ہم جولی بہاول نگر والے صاحب جو کرتے ہیں وہ ہے کیا. سو ہم نے بغیر ناراض ہوئے، بغیر آواز اونچی کیے اور بغیر تلخ ہوئے ان سے بات کی اور پوچھا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ہیں آپ خیریت سے؟ اچھا سر مجھے چونکہ بیک گراؤنڈ نہیں پتہ تو میں اس لیے آپ سے ہی پوچھوں گا کہ ذرا ہمیں سمجھائیں. ہم نے کچھ ریکارڈنگس کی ہیں آپ کی. آپ نے کیا ڈاکٹری کی ہوئی ہے؟ جی حکمت کی ہوئی ہے. حکمت کی ہوئی ہے. جی. MBBS نہیں ہے اور نہ ہی ڈاکٹری سے متعلق ہوئی ہے، ایلوپیتھی سے متعلق ہوئی ہے. ڈینٹسٹ جو ہے نا میں نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ سمجھائیں گے کہ یہ اگر آپ نے وہ اسٹیمپ پڑھی ہوئی ہے جی ایسا ہی ہے نا جی؟ ہاں جی. تو یہ انجیکشنز کا کیا کام ہے اس کے اندر سے؟ اصل میں یہ انجیکشن جو ہے نا فسد کو لگانے کے وہ لیے کیا ذرا سمجھائیے. عام عربی میں سے جو بھی بچنے کہتے ہیں. اچھا یعنی کہ صرف اس کو نا نقطہ دینا ہوتا ہے. نقطہ دینا ہے اور پڑھائی کرنی ہے تو اللہ کے حکم سے فاسد مادہ جو ہے نا کوئی حرج نہیں. آپ فاسد مادہ جو ہے نا وہ باہر کی طرف آ جائے گا. سر آپ میری بات سنیں، ہمیں کوئی ڈرپ لگ رہی ہوتی ہے، انجیکشن لگ رہا ہوتا ہے تو انتہائی سینسیٹیو چیز ہے. میں نے دیکھا کہ آپ جو برقعے میں خواتین ہیں ان کو بھی آپ وہ انجیکشن کے ذریعے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں. سر یہ تو آپ زندگی سے کھیل رہے لوگوں کو. آپ کے پاس قانونی طور پہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ انجیکشن لگا سکتے ہیں. انجیکشن جو ہے ڈینٹل جو ہوتا ہے نا وہ لگا سکتا سر ہے. آپ بلڈ نکال کیسے سکتے ہیں؟ آپ سر میں سے بلڈ نکال رہے ہیں، آپ پیروں میں سے بلڈ نکال رہے ہیں. فسد لگانا کا مقصد کیا ہے؟ میری عرض تو سن لیں. فسد جو ہے نا میری عرض تو سن لیں.
फसाद का मकसद ही ये है कि इंटरनली लाइनों को चलाना। मेरा प्रॉब्लम तो सुने ना क्या जी है। जी। मसलन यहाँ पे जब वो इंजेक्शन लग रहा होता है या उसके लिए ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड लेना होता है तो वेन ढूंढनी पड़ती है, तो आप बगैर देखे कैसे जो है ना वो हर जगह लगा रहे होते हैं सर इंजेक्शन? असल में ये मैं नब्ज़ देखिए ना आपकी, ये देखें, मुझे दिखाएं अपना हाथ। जी ये मैंने आपकी नब्ज़ देखी, ठीक है। अब इसमें जो कुदरती निज़ाम है ना, वो सिर्फ देखना होता है कि फॉलो कौन कर रहा है या बंद कौन सा है। जो बंद होता है ना, हुक्म रब्बी उसी के लिए है कि आप उसको जो है चलाएं, बस। हारूनाबाद में हमने ऐसे ही एक रैकी की थी, 3 लोग उन्होंने मार दिए। अब 302 का पर्चा है उनके पर, मैं आपको FIR भिजवा दूंगा, और वो उस वक्त गायब है। सेम यही तरीका था उनका। मेरे भाई मुझे तो तकरीबन 18 साल हो गए सर, लेकिन ये 18 साल में मैं अगर नहीं फसल मरा तो लगा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मरते हुए जिंदगी पाई है जिंदगी ने। ये हसास नहीं है, बिल्कुल हसास नहीं इख्तियार है है आपको। ये मैं खुद डेंटल हूँ, इसका इख्तियार है आपको। डेंटल भी मैंने कोर्स किया हुआ है, और मैं हिकमत में भी माशाल्लाह इस्लाम मैंने से। कोई आपसे कोई बदतहजीबी तो नहीं जी, की ना? नहीं, मैं तो पहले समझना चाह रहा हूँ बहुत कि आप कैसे ये जो जिसने बुर्का पहना हुआ है, जिसने अबाया पहना हुआ है, आप उसको जो है ना बगैर देखे कैसे इंजेक्शन घुसेड़ सकते हैं उसके जिस्म में? नब्ज़ चेक करते हैं, नब्ज़ की इंजेक्शन फॉलो नहीं लगाते। नब्ज़ के ऊपर देखते हैं हाँ कि जी। कौन सी लाइन कहाँ से फ्लॉप है, उस लाइन को हमने फसद के जरिए बगैर खोलना होता देखे, है। बगैर देखे। बगैर देखे क्यों? वो तो हम रिसर्च कर रहे हैं ना सर उसकी। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, आपने अबाए के अंदर से भी जो है ना वो अबाया नहीं होता है यार, ऊपर होता है भाई, वेंस ये मैं सामने अर्ज कर है। रहा हूँ। क्या सर में से आप ब्लड निकालते हैं? भाई सर की वेंस है ना सारी यहाँ कैसे पे नजर आती है मुझे बताइए? ऐसे नजर आती है। ये आपकी वेन मेन है, ये सामने वाली मेरा लाइन है। सवाल फिर वही पे है, क्या खालिज वालों आपको को- ये इख्तियार है कानूनी तौर पर? यार कानूनी तौर पे तो ये बात है कि फसद जो है ना, ये कुरान पाक का इलाज है। सर मैं तो पाकिस्तान की मतलब देखे ना, वो फिर ये तो बहस को बंद करने वाली बात होती है जब आप दीन को बीच में ले आते हैं। मैं तो सिंपल ये कह रहा ये है ही हूँ दिन का हिसाब, हमने तो किसी से सर, कमाते नहीं है ना। कि कुछ नहीं लेते आप ना अब ये साहिब चूंकि कुरान मजीद को दरमियान में ले आए थे, अगरचे कि इनके पास उसका कोई हवाला नहीं था, और सच्ची बात यह है कि मेरी भी इस बारे में कोई तहकीक नहीं थी कि मैं उनकी बात को झुठला सकता। सो मैंने बहस को समेटने की कोशिश की और तय किया कि हम इस पर मुस्तनद लोगों की राय लेकर आप तक पहुंचाएंगे। सर दवाई का अतिया भी उतना ही कास्ट कर रहे हैं जितने की कास्ट है, और एक अब ये दफा कौन ओनली तय वन, करेगा? एक दफा ये कौन देते तय हैं। करेगा? ये एक दफा उसकी कॉस्ट कैसे तय होगी मुझे ये बताइए? कैस्ट तो आप हमने कैसे चला रहे हैं? रेट लिस्ट अपना- हमने लगाई अपना हुई घर कैसे चला है, रहे हैं? रेट लिस्ट लगाई हुई अपना है। घर कैसे चला रहे हैं? मैं एक्सपोर्ट करता हूँ फ्रूट एंड वेजिटेबल, और शाम के टाइम सर, इसलिए यहाँ बेहतरीन पर। काम है, वो काम करें, क्यों लोगों की तो जिंदगी ये में खेल रहे हैं यार? सर 300 आदमी रोज मैं बुलाता तो नहीं किसी को, सर आप मना मेरे तो कर यहाँ सकते से हैं ना। ठीक होके जाता है, मना तो कर सकते वो हैं। आगे से रेकमेंड करता है। सर वो अल्लाह ताला की ज़ात शिफा देने वाली है, दुनिया भर में लोग ठीक होते हैं। देखिए मेरी बात सुने, दुनिया में कैंसर के पेशेंट ठीक नहीं होते, जर्मनी में, अमेरिका में, लंदन में। जाहिर है जिसके पास पैसा है, अल्लाह पाक सर को अल्लाह दुनिया में ताला की जाता है ज़ात इंसान शिफा देने वाली है। अब आप जाहिर कहिए है। जी मैं ठीक करके भेजता हूँ तो ये नहीं, तो- नहीं, मैं हाँ। नहीं ठीक करता, लेकिन ये करती हमें- अल्लाह हमें की इस ज़ात पे- है। इस पे एतराज़ है सर ये पहले भी इतराज काफी लोगों ने, और सर, पहले भी वो हाँ। जो है ना जी, लेकिन हमें एतराज़ वो उठाएंगे, मैडम हम ने उसको भी रुकवाएंगे। इतराज उठाया, उसने मुझे भी चलान किया, फिर बाद में तो फिर अल्लाह पाक ने। आपने नहीं मतलब आपने रुकना नहीं है इस काम से। यार ये नुकसान नहीं है किसी को, सर, इसका कोई मैं मेरा आपको पेशेंट को ले आए, मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल मैं आप आपको 100 देते FIR होंगे। भिजवा दूंगा, उसकी रिकॉर्डिंग मेरी जान, अगर मेरे यहाँ से आपको 18 साल में कोई मेरा कोई पेशेंट आपको शिकायत है करना ना, कि अल्लाह माफ करे किसी का नुकसान होगा। तो भाई 18 साल से किसी का हुआ नहीं तो मैं हमने यही तो किसी अर्ज का। कर रहा हूँ कि क्या इंतजार करेंगे? 18 साल से नहीं हुआ तो आइंदा नहीं नहीं नहीं, छोड़ ऐसी दिया बात नहीं है, मैं ये जाए। नहीं इसका कह रहा आपको इख्तियार नहीं है ये काम करने का। ये सर। गुजारिश है मेरी मैं सादा ये सी। फसल लगाता हूँ, सिर्फ इसके अंदर कोई ये चीज आप लोगों इंजेक्ट की- नहीं कर आप रहा, लोगों की जिंदगी से- कोई मेडिसिन मैं इसके बड़े अंदर अदब से- डाल नहीं कोई रहा। लड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। कानूनी तौर पे आपको इसका इख्तियार नहीं है। यार फसल लगाना कोई इसमें जुर्म नहीं है। सर, जुर्म की बात कर रहे हैं? आप हजामल करते हैं ना, उसमें आप ब्लेड मुझे यूज बताइए, होता क्या है। एक आम आदमी जब इंजेक्शन मेरी लगा बात सकता है सुनो। किसी को? इंजेक्शन वो लगाना उसको अलाउ नहीं है जिसके अंदर मेडिसिन इंजेक्ट कर रहा है। नहीं, क्या इंजेक्शन लगा सकते हैं बॉडी में किसी भी जगह पे? आप भाई क्या मैं निकाल इंजेक्शन रहे हैं, लगा रहा inject कर हूँ, रहे जो हैं? वेंस बंद है ना, अर्ज कर रहा हूँ, उसको मैं फसल के जरिए खोल रहा हूँ। नहीं आपके ख्याल पहले- में मैं बहस को लंबाता पहले नहीं, तीन- आपके ख्याल में ठीक दो है? चीजों के ऊपर होता है। आपके पहले ठीक करना आपके ख्याल में।
अगर मैं किसी को फायदा दे रहा हूँ तो मेरा ख्याल है इससे कि मैं फायदा हो सुन्नत है 100% फायदा वो हो 3 बंदे मार दिए सर उसने। वो यार उसकी बात छोड़ो, और यहाँ दो की वर्षों बात से ही कर करो रहा था ना सर, यही इस्लामाबाद। की बात कर रहा हूँ ना कि आपको यहाँ से कानूनी तौर पे मेरे कोई पास इख्तियार नहीं है। वाकई मरते हुए आप बंदे यहाँ नहीं लगा जिंदगी सकते पाते हैं। इंजेक्शन, ना इंजेक्ट कर सकते हैं, ना ब्लड ले सकते ये हैं। एक लेडीज यहाँ बैठी मुझे हुई मेरा है, मेरी सवाल- बात सुनिए, यहाँ पे लेडीज एक बैठी हुई है जो कि बिल्कुल पागल और चीखें मारती है, जी मैंने देखा भी, देखा है ना। आज उसका चौथा दम है ठीक है। और उसकी ब्रेन से इंटरनल लाइनों को, कुदरती लाइनों को खोलने का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। उसको मैं वो पढ़ के हुक्म खोला है। कैसे हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप महराज पे गए तो आपको जो है अजामे का और फसद का ही हुक्म नहीं हुआ। आप कह रहे हैं इसके लिए स्पेशल हुक्म है इस खातून भाई की वेज को खोलने का। भाई जो पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो हमने जो हमारी काबिलियत है मैं उसको यूज़ करके उस पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसमें गलत नुकसान जुमला नहीं कह है। गए हैं, लेकिन चलिए उसको हम उसको नहीं पकड़ते। मेरा वाहिद नुक्ता ये है, एक मुझे बात सुना है, मैं- मुझे ये सच एक बता लेडीज दें। के साथ उनका मर्द है दुबई से, वो खुद जॉब करता है, वो बिल्कुल पागल थी। अभी ये मियाँ साहब के कजन्स गए हैं यहाँ से, जिसका डॉक्टर ने सर, पैर मैं भी तो काट यार दिया। कह रहा हूं ना, इलाज तो अल्लाह ताला शिफा तो देता शिफा है तो ना, अल्लाह हर दे रहा किसी है। के वसीले से देखा है, शिफा- हकीमों के भी, हम फसद लगा ऑपरेशन के- से भी। फसद मेरा लगा नुक्ता के आप- वाहिद है सर, ये आप नहीं कर मैं सकते। इसी नुक्ते को आप एक ये नहीं बात कर मैं सकते। कह रहा हूँ कि आप समझ मुझे तो आप लें। आयतें पढ़ें, आप पहले- दम करें, आप हिकमत की दवाएं दें, कोई इशू नहीं है। मुझे यार- सिर्फ इससे प्रॉब्लम कि आप सर में लगा के जो है ना वो मेरी ब्लड लगा जान रहे है, हैं। देखो अगर वो सर आप पे लगाया गर्दन में है लगा ना, के जो है ना वो उसको निकाल दें। गर्दन में भी लगाया है, उसको सर में भी लगाया है, तो वो होश में आ गई है ना, पागल औरत। सर मैं फिर वही कह रहा हूँ कि शिफा तो अभी आप मिलती है उससे ना बात लोगों करो। को, शिफा तो मिलती है। वो तो बस शफा मिल रही है तो लोग सर आते ये हैं ना। गलत तरीके से आप गैर कानूनी तरीके आप से कह रहे हैं मेरी ना, बात ये गलत सुनिए, है। मेरी बात सुनिए। एक आदमी है, उसको शदीद तकलीफ में है, आप कहते हैं यार उसको मैंने हीरोइन देनी है वो ठीक हो जाएगा, तो नहीं, तरीका हीरोइन गलत नहीं है दे ना मेरे सर। भाई, आप यहाँ तड़पता हुआ बंदा लेकर आ रहे हैं ना, ये तरीका बात गलत है ना तड़प रहे हैं सर, ना बंदे। गलत मेरी बात तरीका है सुने, सर। आप मेरी बात सुने, एक्सपेरिमेंट करें कैमरा बंद करके, फिर आप फैसला करें। मेरा- अगर आपने कह दिया ना कि यार इकरार भाई मैं यहाँ से जो है मुतमईन नहीं हूँ, तो मैं आस्ताना आज ही मैं बंद नहीं कर हूं ना दूंगा। सर, आस्ताना अलग, ये अलग, हिकमत अलग, आपने तो मतलब भाई बिल्कुल यही खिचड़ी बना दी आस्ताना ना है, सर। आस्ताना शिफा, इस पे ना कमाई की जाती है तो ना ये तो किसी से कमाई है कुछ ना सर, कमाल है। दवा कोई- दवा कितने की है, यार दिखा जो सकते हैं? हकीम आदमी जो है वो हाँ। 2000 रुपए की दवाई कौन दे सकता है? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, हमें कैसे एक पता महीने का लगेगा? कोर्स हम 2000 मैं- का अब 1800 गुस्सा नहीं रुपए का कर- दे गुस्सा रहे नहीं कर हैं। रहा, मैं नहीं कर रहा ना, ना आप ना भी ना नहीं कर रहे इकरार भाई, मैं अच्छा, गुस्सा नहीं करता तो यार, मेरे आप दामन अच्छा, गुस्सा नहीं कर रहा, मैं आपको मैं प्लान कर रहा हूँ मैं पहली कि बार है कि मैं आप- इतने आराम से बात कर रहा हूँ। आपको मैं है ना, एक्सप्लेन नहीं कर करता रहा इस हूँ तरह मेरी से बात। जान आपको कि गुस्सा आ रहा है? हमारे पास जो भी पेशेंट आ रहा है ना, तकलीफ में आ रहा है ना, उसको यहाँ शफा मिल के जा रहा है, तो हमें ये काम करना चाहिए। सर जी मैं कह रहा हूँ गलत तरीके से आप शिफा नहीं दे सकते ना, ये तो कोई बात नहीं ये है। अब आप शफा कहेंगे मिल मैंने जाने एलोपैथी वाला शुरू कर दी है। मैं फसद लगा के, सुन तो लो फिर पहले, एक काम फसद करते हैं, लगाता हूँ, एक उसको काम- पढ़ाई एक देता हूँ काम कुरान करते हैं, पाक एक काम से, करते हैं, इस बहस का फायदा पढ़ाई नहीं है। देता हूँ इस उसे बहस का कुरान फायदा पाक से नहीं कि है। भाई आप ये इस वजीफा बहस का करें, फायदा नहीं पानी है। पर दम करें, दम पे पानी पिए, छोटी सी मसाज देता हूँ, कुछ आप दवाइयाँ दम देता हूँ, कीजिए, उसके इस्तेमाल मसाज करें। कीजिए, हिकमत की दवाएं दे, कोई एतराज नहीं सर। पुलिस आ रही है, हम कानून के मुताबिक देख लेते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। मेडिकल एक्सपर्ट्स भी इस पे बता देंगे। मेरे भाई मेरे कानून पास भी इस पे 2 अपनी राय दे सेंटर देंगे। लगी हुई है, मैं डेंटल भी हूँ और हकीम भी हूँ। डेंटल यहाँ से ब्लड निकाल सकता है, सर से ब्लड इसको क्या दांत इख्तियार के है? अंदर भी अगर इंजेक्ट कर सकता है, वो बसूड़े फाड़ सकता है, तो ठीक है ना, इस पे बंद लेने को खोल नहीं इस पे करती। मेडिकल एक्सपर्ट्स जो है उनकी राय ले लेते हैं। बंद लेने Dental का कोई है बंद process? लेने खोलने का जो है ना, इसमें Dental का कहीं पे process? भी नुकसान नहीं है। डेंटल सर्टिफिकेट जी जी दिखा सकते वो हैं? लगा हुआ है सामने। कहाँ वो तीसरा वाला? जी मेरा फर्स्ट में हिकमत है, जो थर्ड में जो है वो डेंटल सर्टिफिकेट। देखिए अब तो हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। या तो आप कहेंगे जी नहीं, आप कह रहे हैं ये कि इस तरह दुरुस्त आपको है। समझ नहीं आएगा ये इलाज सर, क्या बात है। समझ की बात ही नहीं है। आप मैं यहाँ बड़ी पे मोटी सी बात- तड़पता हुआ बंदा, हम पेशेंट अभी हाजिर हैं बाहर, हम एक बंदा बुलाते हैं, आपके सामने उसको ट्रीट करते हैं। हम बहुत देखते हैं यार ये मेरी आमिलों के बात पास सुन भी लो, देखा है, ये आमिल सब और देखा है। चीज़ है मेरे भाई, सर, हम ये ना हमने आमिल सारी चीज़ें बड़ी हैं, देखी ना हैं, हम कोई ठीक होते हैं जादूगर उसका। हैं, ना हम कोई वो हैं, मेरा नुक्ता हम सिर्फ आपको नुक्ता जो है किसी ना, के सर में, गर्दन आप में मौलानाओं से ले आए। इंजेक्शन लगाने का इख्तियार नहीं है, मेरा ये नुक्ता है बस। गर्दन के अंदर अगर किसी को साइड इफेक्ट या नुकसान होया होगा तो मैं उसका देनदार हूँ। सर जब हो जाएगा तो हमने और मेरे भाई 18 साल से किसी को नहीं हुआ, 300 सर, मैं पेशेंट आपको कौन है जो example बंदा दे रहा देखेगा? हूं, सर। मैं 300 example- बंदा कौन सा एशिया में मैं देख रहा है? example आप दे रहा हकीम कौन सा है मैं जो example 300 आदमी देख रहा है? बहुत लोग लाने लगे नहीं हैं, नहीं ये ऐसी हमने बात बड़े- नहीं मैं तो आपको मिसाल है। दे रहा हूं। आपको लेने लगने वाले और चीजें, हम थ्राइस सर, हो इसको के कानून के इसे मुताबिक- पिंडी इस्लामाबाद में ये- बैठे ये हैं, ये कर लेते हैं ना, कानून के हम मुताबिक डॉक्टर्स भी की भाई राय ले का लेते हैं, कानून के मुताबिक चलें, आप डॉक्टरों की राय भी लें, मौलानाओं से भी पूछें बिल्कुल ठीक कि होगा। फसद क्या है। ठीक हो गया सर। फसल लगाने का- ये इख्तियार सर मैं मेरी सर ये नाक़िस मैं राय है, उसके ये मुताबिक आपकी नहीं है। राय बिल्कुल नाकिस से आप कह ठीक हो सकते हैं गया, ठीक इसको। हो गया। पहले जो है ना, फसद का मकसद होता है पच, यानी कि उसको एक किस्म का रास्ता देना है, हमें एक पंच देना है उसको। सर आपके पास कानूनी तौर पर ये इख्तियार नहीं है
यार ये इंजेक्शन नहीं आपके ख्याल में है?
कानूनी तौर पे तो यार देखो, अगर हम कोई नुकसान किसी को पहुंचा रहे होते ना, सर, ये तो अभी मतलब ये हमें लोग नुकसान यहाँ पहुंच सकता है ना। 18 साल में कितने हमारे ऊपर केस हो गए हुआ है। सर अब नुकसान का वेट करें, यही तो मैं कर रहा मेडिसिन हूँ। तो हम सफाई के सर, लिए देते हैं, नुकसान का वेट करें सर, नहीं मेडिसिन जो है ना हम जो आप दूसरे पैसे का लगाने आवाज जाए। दे रहे हैं अब्दुल माजिद कुरैशी। माजिद साहब क्या हंस रहे हैं, नुकसान का जरा वेट थोड़ा करें, मुझे भी पानी पिलाओ। नुकसान का वेट करें। तो यार नुकसान का वेट क्यों करेंगे, तो अल्लाह ना करे चीजें किसी गलत को है ना, नुकसान कानून के मुताबिक ठीक नहीं है, तो उसको तर्क कर देना चाहिए। कानून के मुताबिक आपका सिर्फ ओपिनियन ये है कि आप सिरिंज ना मुझे तो लगाएं। मैं कह रहा हूँ हिकमत का कोई इशू नहीं है, आपके दम से मुझे अल्लाह का नाम लेके पढ़ें, आप अच्छी गुफ्तगू करते हैं, हर बात में आप कहते हैं कि जी अल्लाह की मर्जी से उसकी रजा, बहुत अच्छी बात है। ये एक एतराज़ है मेरा आपके ऊपर। भाई मैं फसद लगाने का मकसद क्या है कि फासिद मादों को अल्लाह का हुक्म है लिखा लो। चीरा फाड़ी करने से अल्लाह पाक ने ये कहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मना आप किया है। फरमाइएगा ये कहाँ है, जरा वजाहत दीजिए। ये वजाहत ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पे गए हैं तो आपको चौथे आसमान से फसद के लिए तारीफ हुई। कोई हवाला है, हवाला कुरान पाक खोल के आप देखिए। दिखाइए ना, आप तो करना ही चाहिए काम, आपके पास मकसद डेकोरेट होना चाहिए ना। मकसद क्या क्या है ये फक करने महकमा का? सेहत या बाकी चीज़ों से अप्रूव्ड तरीका इलाज है? इलाज तो ये तरीका इलाज किसी जगह पे अप्रूव्ड है ही नहीं तो है। फिर तो गलत हो गया ना सर, ये तो हमारे बुजुर्गों से 500 साल से अल्लाह पाक ने ये मेहरबानी गलत की हो हुई गया ना है। सर, गलत हो गया ना। 33 अगर years approved मुझे भी नहीं हो है ना गए सर। तो यार मुझे भी क्या अप्रूव करना है। पर गलत हो लोग, उन्होंने कहा है कि पर जी आप गुजारिश ऐसा है, करें कि आप डेंटल गुजारिश ले है, लें, 33 साल से आप गलत काम डेंटल- करा तो ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि आप डेंटल कोर्स ले लें तो आप सिरिंज यूज कर सकते हैं। मात्र मैंने सर में, डेंटल ले लिया, 4 सर में, साल कोर्स गर्दन किया है। में, गर्दन और सर में। भाई गर्दन है, ये सर्वे है, इंटरनल लेने जो कि इंटरनल लेने आप हैं, हम देखिए, उसको- मैं तो इस हम पे- उसको सिर्फ रिड्यूस कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। इस पे हम सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, मेरी अलग राय है, आपकी एक अलग राय है। नहीं, मेरी राय के अंदर गलती कोई नहीं है। ये तो फिर बड़ा, ये तो खुदा ना खास्ता फरिश्ते तो आप खुदा ये ना नहीं करके खास्ता आपकी आपकी राय में रगें गलती नहीं है। पकड़ूंगा ऐसे अल्लाह के हुक्म से हाँ आपकी जी। बीमारी क्या है, का मुझे बताएं। आपकी बीमारी का मैं ना डायलिसिस जो है ना सारा सिस्टम जो है एक किस्म का Diagnosis। सारे डायग्नोज कर लूँगा। बताइए, ठीक है कि नहीं? बताइए क्या बताऊँ? कुछ क्या कोई प्रॉब्लम तो होगी ना मुझे? प्रॉब्लम यही है कि बस आप चलते फिरते हैं, उठते हैं, अल्लाह खाते हैं, अल्लाह ताला का पीते हैं। शुक्र है। नहीं, आप कह रहे हैं ना यही बीमारी problem है। पकड़ लूंगा। बीमारी तो बीमारी, जब वो बीमार सामने आएगा तो मैं आपके सामने पकड़ लेता हूँ। आप बैठे हो आराम आपको से। मुझे लगता है मुझे कोई बीमारी या इशू नहीं होगा। देख यार लीजिए, हर एक इंसान के अंदर 450 मैं अर्ज कर रहा हूँ, चलो इसी बात है, बीमारी मेरी भी कोई भलाई हो जाएगी। 4,500 मेरी भी बीमारी कोई भलाई हो अल्लाह पाक जाएगी ने हमारे। इंसान के अंदर होती है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरी भी भलाई हो जाएगी, मुझे जरा देख लें। वो आप जिस वक्त चैनल के थ्रू आएंगे ना फिर आपको चेक करूंगा सर मैं। नहीं, इसका मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि आपको ये इस्तेमाल करते रहना है। भाई मैं अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो किसी के फायदे के लिए कर रहा हूँ और अपनी मतलब- जेब से लगा रहा हूँ ये। आप ठीक इस है। पे कायम है और आप कह रहे हैं मेरी राय मैं बिल्कुल अपनी- ठीक है, इसमें गलती का इम्कान मैं अगर ये लोगों को अगर कोई शिकायत हो ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बंद करने के लिए तैयार हूँ। नहीं। सर नुकसान का इंतजार नहीं करना ना, मसला वो फिर ये मेरे है ना, भाई सर। इंतजार नुकसान का वो लोग करें ना जिनके पर चालान हो मैं गया है या मिसाल दे रहा नुकसान हूँ, हो गया मैं है। मिसाल दे रहा हूँ कि बंदे 3 मर गए हैं सर। ओ मैं आपको भाई FIR वो जो आप भेजता हूँ मिसाल उसकी। दे रहे हैं ना वो मिसाल ऐसे है कि वो ये समझ लो कि चिराग को अंधेरा जो है ना दिखा रहे हो आप। बहरहाल यहाँ इस बहस को अधूरा छोड़कर हम इनके घर से बाहर निकले, जिसे अल्लाह जाने मतब कहेंगे, क्लिनिक कहेंगे या फिर आस्थाना। और फिर हमने मुल्क के चोटी के उलमा, हुक्मा और डॉक्टर साहिबान से इस खतरनाक तरीक़ा इलाज के बारे में जानने की कोशिश की, जिसमें सर की रगों तक में इंजेक्शन घुसेड़ कर खून निकाल कर ये बताया जाता है कि हमने आपके खून की रगें खोल दी है। इस बारे में सबकी राय मुतफ़क्का थी, और वो राय क्या थी मुलाहिजा कीजिए। सिरिंज से कोई खून निकालने का तरीक़ा तिब्ब यूनानी में कभी भी कोई राइज नहीं रहा, ना ऐसी कोई मिसाल मिलती कि सिरिंज से बड़ा खून निकाला जा रहा हो। हिजामा एक कपिंग थेरेपी ज़रूर है, वो ऑथेंटिक है और उसी का हदीस में तज़किरा भी है। उसके लिए बहुत सुपरफिशियल कट दिए जाते हैं एपिडर्मिस में और वैक्यूम के ज़रिए से खून इकट्ठा करके निकाला जाता है, जिसके अलग अलग पॉइंट्स हैं, वहाँ से निकाला जाता है। लेकिन इतनी मकदार में और इस तरह का नहीं होता कि बाकायदा सिरिंज से उसको निकाला जा रहा हो और अलग अलग मकामात से और बहुत नाजुक हिस्सों से निकाला जा रहा हो। तो जो अतायत के साथ और अताई लोग इस तरह खून निकाल रहे होते हैं, ना तो वो सफाई सुथराई का
اس کا لحاظ رکھتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ ڈسپوزیبل سرنج استعمال کر رہے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سرنج کئی مریضوں کے لیے استعمال کی جا رہی ہو. تو یقیناً اس میں خطرہ ہے کہ بیماریاں خطرناک قسم کی بیماریاں لگ جائیں جو بعد میں مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہیں یا صحت کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہیں. یہ بالکل مذہب کا غلط استعمال ہے. اس پہ پابندی ہونی چاہیے. دیکھیں جب آپ کے پاس کوئی قابلیت نہیں ہوتی نا تو پھر آپ کی صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں. تو یہ جو فسد کے نام سے جو آپ نے ویڈیوز مجھے دکھائی ہیں کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے لوگوں کے سرنج سے خون نکال رہا ہے, تو بھائی اس پہ گورنمنٹ پابندی لگائے. لوگوں کو بیمار کرے گا. یہ تو ڈاکٹر ہیں, ماہر حکیم ہیں جو سرٹیفائیڈ ہیں, ان سے علاج کروایا جائے. ایسے ہی کوئی بیٹھا ہو کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فسد میں علاج بتایا تو اب فلاں بندہ فسد کرنا شروع کر دے گا. نبی نے یہ تو نہیں بتایا کہ فلاں بندہ کرے گا تو اس سے علاج ہوگا اور اس بیماری میں فلاں طریقے سے علاج ہوگا. یہ تو نبی نہیں, یہ تو میڈیکل سائنس یا طب بتائے گی ہمیں. تو اس لیے ان تمام قسم کے لوگوں سے جو طب نبوی کے نام پہ یا قرآن و سنت کے نام پہ علاج بتا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ان لوگوں سے بہت زیادہ ہوشیار رہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نہ ڈاکٹر ہیں, نہ ماہر حکیم ہیں اور نہ کوئی عالم دین ہے. تو ان کو چونکہ کچھ بھی نہیں آتا, تو اب جس کو کچھ بھی نہیں آتا اس کو کمانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. تو پاکستان میں چونکہ لوگوں سے مذہب سے محبت ہے الحمدللہ, مذہب کے نام پہ منجن بہت بہترین طریقے سے یہاں ملتا ہے. اگر صرف سرس کے اوپری حصے سے آپ بلڈ نکال لیں اور یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بھائی فالج ٹھیک ہو جائے گا, دماغ کے اندر کا بلڈ باہر آ گیا, تو یہ اس میں کوئی سینس نہیں ہے. اس بات میں, اس فزیولوجی میں کوئی سینس نہیں ہے. اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یار شاید ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے. اب اس میں زیادہ تر لوگوں کے ایمان کی بات ہے یا لوگوں کے ٹرسٹ کی بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں وہاں جاؤں گا تو بہتر ہو جاؤں گا, اور ان کا کانفیڈنس بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بھائی میں تمہیں 3 دن میں ٹھیک کر دوں گا. لیکن اس کی کوئی اہمیت ہے نہیں, اس سے کوئی بہتر نہیں ہوتا. اگر میرے پاس کوئی مریض آتا ہے فالج کے ساتھ, میں اس کو دوائی دیتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ بھائی اگر چھوٹا فالج ہے تو وہ 1 مہینے میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اب اس 1 مہینے کے اندر وہ کوئی دھاگا باندھ لے یا وہ کوئی دم درود کر لے یا وہ کسی پیر کے پاس چلا جائے تو کریڈٹ وہ لے جائے گا. لیکن سچی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی 1 مہینے کے اندر مریض میں ویسے ہی کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, کیونکہ ریکوری آ جاتی ہے. ابھی تک میڈیکل سائنس نے ایسا کوئی طریقہ لا نہیں نکلا کہ ایک سرنج سے بلڈ نکالنے سے بلڈ کلاٹ دماغ سے نکل جائے. اس کا آپریشن یا بلڈ تھنر کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں جو کلاٹ کو ڈیزالو کر سکے. یہ لوگ کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگوں کی صحت سے کھیل رہے ہیں. اب اختیار کو اس پہ غور کرنا چاہیے, ان لوگوں کو روکنا چاہیے. لوگوں کی ضعیف الاعتقادی اور مختلف مسائل کی وجہ سے وہ ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں. کلاٹ بننے کی بہت سی وجہ ہیں. اس میں سٹریس بھی ہے, بلڈ پریشر ہے, فوڈ کی وجہ ہو سکتی ہے, کچھ ہیڈ انجری ہو سکتی ہے. اور یہ بلڈ نکالنے فوٹیج میں وہ اسکن میں سے نکال رہے ہیں, تو وہ بلڈ کیسے کلاٹ کو ڈیزالو کرے گا. دیکھیے فسد کے بارے میں کتابوں میں جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے سلیبس کی کتابوں میں موجود ہے. ہماری جو بنیادی کتاب کلیات جسے بیسک میڈیکل آف سائنسز کہتے ہیں اس کے اندر یہ شامل ہے اور پڑھایا جاتا ہے. لیکن پریکٹیکلی طور پہ اس کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم اسے مزید آگے ڈیولپ نہیں کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ جو روایتی طریقے ہیں ان کو آگے فروغ دینے کے لیے, ترقی کے لیے, ان کی توسیع کے لیے ضروری ہے کہ انہیں عالمی معیارات کے مطابق ان کے SOPs بنا کر انہیں ڈیولپ کرنے کا اہتمام کیا جائے. یار بھائی ایک تو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آپ کو, آپ کی ٹیم کو کہ ماشاءاللہ آپ جس طرح سے یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں اور اویئرنیس جو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اپنی طرف سے سچی بات کا آپ کو بہت موافق ہوں. یہ جو آپ نے مطلب دکھائی ہے جو ویڈیو, اور اس کے اندر یہ جو ڈاکٹر صاحب, سو کال ڈاکٹر صاحب جو وہ کر رہے ہیں کہ جی ہم خون نکالتے ہیں, آنکھ کے اوپر سے نکالتے ہیں, فالج کا علاج ہے تو وہاں سے نکالتے ہیں, تو یہ جو شوبدہ بازیاں ہیں یہ میڈیکل سائنس کے اندر تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن لوگوں کے ساتھ یہ افریقہ میں بھی آپ دیکھیں گے, پاکستان میں بھی دیکھیں گے, باقی ہمسایہ ملکوں میں بھی دیکھیں گے, تو یہ ساری شوبدہ بازیاں, شوبدہ بازی اور اپنی لچر زبانی کی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ لوگوں کو امپریس کرتے ہیں اور سائیکولوجیکلی سائیکوسومیٹک اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے جس سے لوگ مطلب ایک مریض سمجھتا ہے کہ شاید میں ٹھیک ہو گیا. پھر انہوں نے اپنے ہواری چھوڑے ہوتے ہیں جو کہ کنونس کرتے ہیں کہ جی بالکل مجھے ایسا مسئلہ تھا, میرا فالج اٹیک ہو گیا, میری آنکھیں نیچے گرنی تھیں, وہ آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی قسم کے ہی ایک مطلب شعبہ بازی کے اندر ہے.
देयर इज़ नथिंग इन द मेडिकल साइंस के अंदर कतई तौर पे ऐसा कोई इलाज नहीं है जो कि ऐसे इस तरह से क्लॉट निकाले जाते हैं। क्लॉटिंग का जो सिस्टम उसको डायग्नोस करने के लिए ऑन मतलब एक रूहानी तौर पे क्लॉटिंग की कोई किसी किस्म की ये डायग्नोसिस नहीं हो सकती। उसका एक तरीका इन्वेस्टिगेशंस का तरीका है। उन इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये पता चलता है कि अगर क्लॉट है कहाँ पे और उसको निकालने की खातिर जो है फिर वो तरीक़ेकार है, एक मुरवजा इलाज है जो कि मेडिकल साइंस के अंदर वो किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दिखाया आपने ये एक क्वैक अताई जो है यहाँ पे पंजाब के अंदर बदकिस्मती से पूरे पाकिस्तान के अंदर ही है। और मैं एक और आपसे शेयर करूँ कि हमारे इदारे जो हैं इसके अंदर पहले 2010 से जो था हेल्थ केयर कमीशन बना कि पहले अतायत कम थी, इनके आने के बाद अतायत और बढ़ गई जिन्होंने कि उसको रोकना था। तो ये बदकिस्मती है कि मुआशरे के अंदर ऐसी चीज़ें जो वकूफ़ हो रही। अब सवाल ये है कि मुख्तलिफ तरीका है इलाज पर लोगों की सादा लौह अक्सरियत तो यकीन ले आती है, लेकिन क्या वो तरीका इलाज ज़िंदगी है या फिर खुदा न खास्ता मौत? इसका फैसला हुकूमत और हुकूमती इदारों को करना होता है और इसकी इजाज़त या इस तरीका इलाज पर पाबंदी का फैसला भी हुकूमत ही ने करना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ इस वक्त मौजूद है?